Good morning, all. Those who Good want to morning, sir. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. those who want to join A2 section maths lecture, they can leave this class. No problem. So yesterday we have completed unit number 2. Okay. So in that we have seen orthographic projection and projection of points. Yesterday we discussed projection of points. So I hope everybody understood projection of points. Huh? Any problem regarding that? Anybody wants to ask anything regarding projection of points? No, sir. Hmm. So regarding yesterday's class, we'll continue the same where we left yesterday, and we will start. So in this, as you can see, unit number 3, what we are going to take unit number 3, projection of lines and planes and their traces. So in projection of lines, we will see projection of lines parallel and perpendicular to one or both planes, projection of lines inclined to one or both planes, and traces of lines. So this we will discuss in projections of lines, and then we will discuss plane. So as you all know, these are the quadrants. Now projections of straight lines. A straight line means what? A straight line is the shortest distance between 2 points. Hence, the projections of a straight line may be drawn by joining respective projections of its ends, which are points. Means whenever you want to draw a line, you must know 2 points. आपको 2 points पता रहना जरूरी है straight line draw करने के लिए. And that projection of, उसके लिए projection of point का जो concept है वो clear रहना चाहिए, क्योंकि projection of point का concept clear रहेगा आपको, so तभी आप उस मतलब projection of line आप आराम से draw कर पाओगे. Okay, so we'll discuss the concept first. Now some note, the thing which you should remember, like yesterday we have discussed. So first point is, if the top view of a line is parallel to xy, अगर कोई भी top view वो parallel होता है xy line को, तो उसका जो front view है वो आपका true length होती है. ठीक है. और दूसरा, अगर front view कोई भी लाइन होती है, फ्रंट व्यू अगर वो पैरेलल टू एक्स वाई है, तो टॉप व्यू क्या होता है उसका? ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ. ये हम लोग जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा. ट्रू लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ. मतलब ये कि अगर कोई लाइन, अगर सपोज करो कि 50 mm की है, 50 mm की है, जो कि इंक्लाइंड है, कहाँ पे? फ्रंट व्यू में. बट इंक्लाइन फ्रंट व्यू में है, लेकिन जब टॉप व्यू में आएगा तो वो तो पैरेलल दिखेगी, है ना? तो वो टॉप व्यू में रिड्यूस रहेगा, टॉप व्यू में वो रिड्यूस लेंथ रहेगा, बट फ्रंट व्यू में उसका ओरिजिनल लेंथ या ट्रू लेंथ रहेगा. ओके, सो वो उसका मतलब होता है. सो टॉप व्यू ऑफ ए लाइन इफ इट इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो वो फ्रंट व्यू में इंक्लाइंड रहेगा. इंक्लाइंड रहेगा मतलब ट्रू लेंथ रहेगा. वही उल्टा अगर आप बोलते हो कि अगर फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो टॉप व्यू में क्या रहेगा? ट्रू लेंथ मतलब इंक्लाइंड रहेगा. सो पैरेलल टू वन प्लेन, इंक्लाइंड टू अदर, इस तरह से. यस्टरडे वी डिस्कस, जब भी हम फ्रंट व्यू एचपी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो वो क्या आएगा? फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं हम. जब भी टॉप व्यू बोलेंगे, वेट अ मिनट, यहाँ पे चाहिए वीपी.
Hello everyone. So power failure was there. Just again I join this session. Once again I will present the screen. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. What's- Okay. So whenever we are talking regarding horizontal plane, as you all know, we are talking regarding front view. जब भी HP की बात होती है तो वो होता है फ्रंट व्यू, और जब भी VP की बात होती है वो होता है टॉप व्यू. HP means horizontal plane, FV means front view, VP means vertical plane, PV means top view. Okay. Now suppose next point is front view of a line inclined 30 degree to HP. अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि फ्रंट व्यू कोई भी लाइन और उसमें डायरेक्ट फ्रंट व्यू नाम लिखा होता है कि भाई फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इज 30 डिग्री टू HP, तो उस 30 डिग्री को बोलेंगे अल्फा, है ना. जो भी लाइन इंक्लाइंड होती है और उसका नाम अगर फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP बोलते हैं तो उसको बोलेंगे अल्फा. वही अगर इंस्टेड ऑफ फ्रंट व्यू सिर्फ लाइन बोलते हैं, लाइन इज इंक्लाइंड टू HP, तो वो ट्रू लेंथ होती है, तो वो एंगल होता है थीटा. अंडरस्टूड. फ्रंट व्यू की बात जब बोलेंगे तो वो एंगल होगा अल्फा. जब सिंपल लाइन बोलेंगे कि लाइन इज इंक्लाइंड टू HP, तो वो एंगल होगा थीटा. अगर टॉप व्यू ऑफ लाइन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू VP बोलेंगे तो वो होता है बीटा, तो 30 डिग्री क्या हो गया, बीटा. और सिंपल लाइन इंक्लाइंड टू VP बोलेंगे तो वो होता है फाई. गेटिंग माय पॉइंट. तो सारी चीजें देखे नहीं रहेगा, कोई ना कोई मिसिंग रहेगा, कुछ देखे रहेगा, तो आपको ये अल्फा बीटा, अल्फा थीटा बीटा और फाई, ये चारों चीजें आनी चाहिए. तो फ्रंट व्यू मतलब अल्फा, टॉप व्यू मतलब बीटा. बट थीटा कब यूज करते हैं, जब ट्रू लेंथ की बात करते हैं. ट्रू लेंथ इन HP, जब भी HP रहेगा और ट्रू लेंथ सिंपल लाइन रहेगा, फ्रंट व्यू बोला नहीं रहेगा, तो वो होता है थीटा. और सिंपल लाइन बोला रहेगा और VP बोला रहेगा, वर्टिकल प्लेन, तो उसका एंगल होगा फाई. समझ में आया, अंडरस्टूड. ये आपको नोट ही करके रखना पड़ेगा ना, यू हैव टू नोट इट डाउन. और पोजीशंस ऑफ लाइन मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक का सबसे टफेस्ट टॉपिक है. इसमें आपका लॉजिकल सेंस बहुत ज़्यादा लगेगा आपको जब भी ड्रॉ करना है लाइन. ओके. बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स नहीं दिए रहते और फ्यू पैरामीटर से आपको वो लाइन ड्रॉ करनी होती है. गेटिंग में पॉइंट. आवाज आ रहा है ना सब लोग. Sir. हाँ. यस. Yes, sir. यस यस. Yes, sir. पता नहीं फिर डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा. ओके. सो वी विल स्टार्ट नाउ. अगेन नोट कर लेते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट HP के अबाव होता है ना, पॉइंट अबाव HP, तो वो पॉइंट कहाँ बनता है, XY के अबाव, है ना. तो यहाँ पे अगर पॉइंट HP के अबाव है तो वो लाइन XY के अबाव बनेगी. अगर वो पॉइंट HP पे है तो वो पॉइंट लाइन कहाँ बनेगी, XY से शुरू होगा, है ना. एक एंड कहाँ रहेगा, XY पे. अगर वो पॉइंट HP के बिलो रहती है, बिलो HP,
तो वो लाइन कहाँ बनेगी, एक्स वाई के नीचे, या फिर वो पॉइंट कहाँ बनेगा, जो पहला पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स वाई के नीचे से शुरू होगा, बिलो एक्स वाई। ये हो गया एचपी के लिए, हमने कल पढ़ा था, अबव बिलो देखा था, और आज हम देख रहे हैं इन ऑन एचपी। इफ ए पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, जब भी इन फ्रंट बोला जाता है तो बिलो एक्स वाई, है ना, इन फ्रंट बोला जाता है तो बिलो एक्स वाई। अगर वीपी पे पॉइंट है तो ऑन एक्स वाई, एचपी पे पॉइंट है तो ऑन एक्स वाई, वीपी पे पॉइंट है तो ऑन एक्स वाई। अगर पॉइंट बिहाइंड वीपी है, बिहाइंड वीपी, तो वो क्या रहेगा, अबाव एक्स वाई। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। ये नोट डाउन को कल मैंने कल का पीडीएफ क्लासरूम में अपलोड कर दिया था, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट, और उसका वीडियो भी कल का जो था मैंने अपलोड कर दिया था। तो जिनका भी क्लास मिस हुआ हो या नहीं समझा हो, दे कैन रेफर दैट पीडीएफ एंड दे कैन रेफर दैट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ माइंड। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। पहला जो कंडीशन है, लाइन पैरेलल टू वन और बोथ द प्लेन, लाइन पैरेलल टू वन और बोथ द प्लेन, मतलब ये जो लाइन है ए डैश बी डैश या ए बी, एक प्लेन को पैरेलल रहेंगी तो दूसरे को इंक्लाइंड रहेंगी। देखो, एक यहाँ पैरेलल है तो यहाँ इंक्लाइंड है, या दोनों को भी पैरेलल है, दोनों को भी पैरेलल है। ओके, तो इस तरह का कंडीशन आ सकता है बहुत बार कि लाइन पैरेलल टू वन प्लेन, तो ये जो इंक्लाइन दिख रहा है ना आपको, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ, या इसको बोलेंगे ट्रू लेंथ। ये ए बी जो है ना, ये ट्रू लेंथ, और मतलब ये टॉप व्यू हो गया, तो टॉप व्यू में हमको ओरिजिनल लेंथ मिल रही है। लेकिन जब इसको आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तो ए डैश बी डैश मतलब फ्रंट व्यू क्या हो गया, रिड्यूस लेंथ, फ्रंट व्यू इज अ रिड्यूस लेंथ। सिमिलरली जैसे सी डैश डी डैश आपका फ्रंट व्यू है, उसमें आपको इंक्लाइन दिख रहे हैं, मतलब ये ट्रू लेंथ हो गई। लेकिन जब आप इसको प्रोजेक्ट करके टॉप व्यू में आओगे तो ये रहेगा रिड्यूस लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ सी डैश डी डैश, और ये सी डी क्या रहेगा, रिड्यूस लेंथ। और ये कंडीशन में क्या हो गया कि पैरेलल टू बोथ, तो उसका ट्रू लेंथ ही हो गया, उसका मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, ये दोनों जो दोनों जो लाइन है, हम उसको बोल सकते हैं कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। देन लाइन कंटेन्ड बाय वन और बोथ द प्लेन, लाइन कंटेन्ड बाय वन और बोथ द प्लेन, मतलब एक्स वाई पे है कोई तो भी एक लाइन। तो जैसे कि ए बी जो है ये टॉप व्यू है, ये इंक्लाइंड है, और ए डैश बी डैश एक्स वाई पे, जैसे उसने अगर बोला कि ऑन एच पी या ऑन वी पी, जैसे ए डैश बी डैश दिखा है तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश दोनों पॉइंट क्या हो गए, ऑन एच पी है, ऑन एच पी, इसलिए ये कहाँ पे आ गए, एक्स वाई लाइन पे आ गए। अब ये केस में क्या हो रहा है कि सी डैश डी डैश एक्स वाई लाइन के अबाव है, बट सी डी पॉइंट एक्स वाई लाइन पे है, तो ये सी डी पॉइंट कहाँ आ गए, ऑन वीपी, ऑन वीपी मतलब ये एक्स वाई लाइन पे। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉइंट, एक्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों पॉइंट कहाँ आ सकते हैं, दोनों पॉइंट आ सकते हैं एक्स वाई लाइन पे। सो ये लाइन कंटेन्ड बाय वन और बोथ प्लेन, मतलब एक्स वाई लाइन पे ही दोनों पॉइंट आ रहे हैं आपको। ओके, देन लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन्स, जो लाइन है, देखो ये एच पी, ये परपेंडिकुलर टू वन प्लेन है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये टॉप व्यू में क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। ठीक है, वही अगर ये परपेंडिकुलर एक्स वाई को है यहाँ पे, तो ये फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा भी आता है, इस तरह से भी रह सकता है। पैरेलल रहेगा तो एक इंक्लाइन रहेगा तो दूसरा क्या दिखेगा आपको, पैरेलल दिखेगा। लेकिन परपेंडिकुलर में यहाँ पे अगर आप टॉप से देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट दिखेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन पैरेलल टू अदर, लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन पैरेलल टू अदर। देखो, इंक्लाइन टू वन प्लेन, इंक्लाइंड है, और दूसरे प्लेन को क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। ओके, तो ये कंडीशन है। ओके, तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल लेते हैं, ये आप लिख लो। ए लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज परपेंडिकुलर टू एच पी, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज परपेंडिकुलर टू एच पी with end A 25 mm above HP and 30 mm in front of VP and 30 mm in front of VP। मतलब क्या बोल रहा है वो, ए लाइन ए बी, उसने क्या बोला, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बोला है क्या, नहीं बोला, उसने बोला है लाइन ए बी। ओके, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू लेंथ हो गया, 80 mm की लाइन है ना। ये परपेंडिकुलर टू एचपी है, एचपी मतलब
कौन सी बात हो रही है? फ्रंट व्यू की बात हो रही है। परपेंडिकुलर टू एचपी है, देखो एचपी को परपेंडिकुलर है, और उसका एक पॉइंट जो है, उसका एक पॉइंट जो है ए, वो 25 mm अबाव एचपी है। सो ए मतलब जब भी 25 mm अबाव एचपी बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ए डैश। तो ए डैश पॉइंट कहाँ पे है? इट इज 25 mm, इट इज 25 mm अबाव एक्स वाई, 25 mm अबाव एक्स वाई। तो जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ो इसको इस तरह से, उसके ये इस तरह से लिख लो, है ना। और ये लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग मतलब क्या हो गया? वो लाइन है 80 mm की, और उसमें का उसका जो पहला पॉइंट है वो कितना है? 25 mm अबाव एच पी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोले तो, इन फ्रंट बोले तो बिलो एक्स वाई, इन फ्रंट बोले तो बिलो एक्स वाई। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ रहेगा? 30 mm, 30 mm बिलो एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने ये डायग्राम, ये जो न्यूमेरिकल दिया है, इसमें दिया था अ लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज परपेंडिकुलर टू एच पी। लाइन ए बी जो है परपेंडिकुलर टू एच पी है। ओके, तो वो परपेंडिकुलर टू एचपी है, लेकिन वो दोनों पॉइंट, अब लाइन बोले तो दो पॉइंट्स आएंगे, तो हमको तो दोनों पॉइंट्स पता रहना चाहिए ना। एटलीस्ट एक पॉइंट भी पता चल गया तो हमको लाइन का लेंथ तो पता है 80 mm। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है आपको। सो ड्रॉ एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, कोई भी लेंथ लो, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। मान लो अगर मैंने ये वाला कंसिडर किया, ये वाला एरिया, यहाँ से आपको क्या करना है? 25 mm, 25 mm ऊपर एक पैरेलल लाइन कर लो। ये कितना डिस्टेंस कितना रहेगा इसका? 25 mm, 25 mm इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स वाई और ये दूसरा। अब ये जो ए डैश पॉइंट है वो आपको इस एक्स वाई लाइन से 25 mm ऊपर है। तो और वो उसने क्या बोला? एचपी की बात की। एचपी मतलब उस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? ए डैश। इतना बनाओ पहले। कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अगर कुछ भी डाउट है। बिकॉज ना ये टॉपिक, कल का टॉपिक और आज का टॉपिक नहीं समझा तो आगे का कुछ भी नहीं समझेगा। कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इफ यू आर हैविंग इन योर माइंड यू कैन आस्क। कल हमने पढ़ा था पॉइंट के बारे में, और हमने कल ये भी पढ़ा था कि जब भी कोई भी पॉइंट अबाव एच पी होता है तो वो अबाव एक्स वाई, इसलिए हमने वो ए डैश को अबाव एक्स वाई लिया। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है, क्या लिखा है? 25 mm अबाव एच पी, ऐसा लिखा है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन दैट पॉइंट अबाव एक्स वाई। इतना ड्रॉ हो गया, ए डैश पॉइंट ड्रॉ हो गया आपका। यस सर। एवरीबडी, सबका हुआ क्या? ए यस डैश सर। पॉइंट। हाँ, तो अभी हमको ए डैश पॉइंट मालूम हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है वो, कि दूसरा जो पॉइंट है ए, वो 30 mm नीचे है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, वो नीचे का जो पॉइंट है ए, दैट वी विल नॉट ड्रॉ। व्हाई? बिकॉज वी नो द लेंथ ऑफ द लाइन। लाइन की लेंथ हमको पता है, कितना है लाइन का लेंथ? 80 mm। और उसने क्या बोला है? ए बी जो लाइन है 80 mm, वो कैसी है? परपेंडिकुलर टू एच पी है। उसने इंक्लाइन बोला रहता, कुछ एंगल दिया रहता तो हमने एंगल ड्रॉ किया रहता, और उसने सीधा सीधा बोल दिया कि इट इज परपेंडिकुलर। तो जो आपका ए डैश पॉइंट है वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जिसका लेंथ कितना रहेगा? 80 mm। और जहां पे वो 80 mm खत्म होता है उस पॉइंट का नाम दे दो बी डैश, और इसका लेंथ रहेगा आपका 80 mm। तो आपकी ये लाइन बन जाएगी ए डैश बी डैश। इतना ड्रॉ करो। पहले हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, फिर वहां से 25 mm का एक डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। नहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो एक पॉइंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हर एक डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से 80 mm है ना, यहाँ पे भी अगर आपने फेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है,
आगे चल के कुछ इंक्लाइन वगैरह रहा तो आप डायरेक्ट कहीं भी टच कर सकते हो। तो जब भी ऐसा रहेगा, जितने भी पॉइंट्स रखे 25 mm अबाव है या 80 mm अबाव है या से 30 mm बिलो है, तो जितने जहाँ पे वहां सब पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके रख देने का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 25 mm पे एक पॉइंट मार्क कर दिया जिसका नाम दिया ए डैश, और 80 mm पे एक मार्क किया हमने जिसका नाम दे दिया बी डैश। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। हो गया इतना ड्रॉ? सर हाँ बोलो। सर वो 25 छोड़ के ऊपर 80 mm लेना है क्या? हाँ 25 के ऊपर से 80 mm, क्योंकि क्या बोल रहा है, लाइन जो है ना, लाइन के दो पॉइंट्स है, दो एंड्स होते हैं। पहला एंड 25 mm ऊपर है और वहां से 80 mm की लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो ए डैश से 80 mm ऊपर लेना है, एक्स वाई से नहीं। एक्स वाई से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे ना। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ हाँ। हो गया इतना? हाँ सर हो गया। हाँ, अब ये ए डैश बी डैश ये डार्क करना है, बाकी सारा फेंट, एक्स वाई लाइन डार्क रहेगा और ए डैश बी डैश ये लाइन डार्क रहेंगी। अब हमको क्या निकालना है, ए पॉइंट निकालना है ना, ए पॉइंट निकालना है। ए पॉइंट कहाँ पे है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट मतलब हमने लिखा है 30 mm बिलो एक्स वाई। तो जो ए डैश पॉइंट है, यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो, फेंट वाला, अंदाज से नीचे तक लो, और एक्स वाई लाइन से नीचे एक 30 mm का डिस्टेंस लो, एक 30 mm का डिस्टेंस लो, और जहां पे 30 mm आपको मिलता है वहां पे एक पॉइंट मार्क कर दो जिसका नाम रखो ए। एक्स वाई लाइन से 30 mm नीचे एक पॉइंट मार्क करो जिसका नाम रहेगा ए। अब उसका नाम ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा? नहीं नहीं, बहुत लो जा रहा, बहुत ज्यादा लो आ रहा। सर आ रहा क्लियर? सर क्लियर है आवाज? डाउट भी आ रहा? क्लियर है ना? हाँ हाँ वही तो। आपके शायद हो सकता है वीडियो अगर किसी ने ऑन किया हो तो ऑफ कर दो प्लीज, क्योंकि क्या होता है उससे बैंडविड्थ कम हो जाती है और तकलीफ होती है। थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी है ना, तो हो सकता है नेट का स्पीड का इश्यू हो सकता है। तो अगर ए डैश बी डैश ये लाइन अगर हमने ऊपर निकाली तो जो पॉइंट रहेगा उसका नाम ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, क्योंकि कोई अगर पॉइंट, कोई अगर लाइन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन है तो उसका टॉप व्यू क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। उसका टॉप व्यू क्या बनेगा, पॉइंट। पॉइंट मतलब उस पॉइंट को दोनों नाम आ जाएंगे, ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ए कॉमा बी ऐसा लिख दो, ए कॉमा बी बोलो या ए स्लैश बी लिखा दो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट हमको जब भी स्टार्ट करना होता है न्यूमेरिकल, वी हैव टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट प्रॉब्लम। any doubt you can ask me, free to ask me. But I hope everybody are drawing, क्योंकि मैं जितना भी ड्रॉ करने दिया है आपको मैं फिर से पीडीएफ अपलोड करने बताऊंगा असाइनमेंट करके। तो you should be ready with your sketchbook and everything. So whatever numericals I'm taking, everything should be noted down in your sketchbook. हो गया न्यूमेरिकल, क्लियर हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया? शैल वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट? Yes, sir. यस, कल बहुत सारा लेना यस वाला। सर। Yes, sir. ओके देन, वी विल हेडिंग टुवर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं आई होप, सो वी विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट। नो सर। यस, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ लाइन CD। ये लाइन का नाम है CD, जिसका लेंथ है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर की एक लाइन है
ओके और वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू वीपी है। जब भी एचपी थी तो लाइन एक्स वाई के ऊपर बनी थी, बराबर, परपेंडिकुलर लाइन। अब ये क्या बोल रहा है कि 65 mm, सॉरी mm है वो, गलती से सेंटीमीटर हो गया, इट इज mm, सेंटीमीटर बोले तो बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा। 65 mm long line is perpendicular to VP. Perpendicular to VP. Its end B is in VP. End B मतलब VP मतलब उस पॉइंट को डैश नहीं आएगा, तो ये B कहां पे है, इन VP मतलब कौन बताएगा? On XY. On XY line. Yes. And 20 mm above HP. HP मतलब B डैश कितना? Above XY line. Above XY कितना mm? 20 mm. 20 mm above X। ऐसा आप लिखते जाओ, जब भी आप पढ़ोगे डेटा जो है ना ऐसा लिखो। मतलब क्या होता है, एक बार डेटा लिख दिया तो न्यूमेरिकल देखने की जरूरत नहीं। मतलब पेपर में आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो शीट के ऊपर उसका डेटा लिख देने का और पेपर बाजू में रख देने का, फिर वो डेटा देख के आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ इट्स टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ XY लाइन। XY लाइन ड्रॉ करो, एक XY लाइन ड्रॉ करो। और उसने क्या बोला है कि अरे यार उसने सी डी बोला और यहाँ पे बी पॉइंट, ये एक्चुअली डी होगा या सी होगा। इसको एक काम करो, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है। आ गया कर्सर। हाँ, ये जो पॉइंट है ना बी है कि नहीं, इसको ना सी कर दो, है ना, सी पॉइंट ले लो। ओके, सी डी में का सी पॉइंट ले लो। सो इट विल बी व्हाट, सी एंड सी डैश। ठीक है, सी पॉइंट ले लो उसको, क्योंकि यहाँ पे सी डी लिखा है ना और वहां पे बी लिखा है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया। सो लाइन सी डी 65 mm long is perpendicular to VP and its end C is in VP. So C कहाँ पे है, XY पे, और 20 mm above HP। 20 mm above HP मतलब C डैश पॉइंट कहाँ रहेगा, 20 mm above XY। ठीक, तो XY लाइन ड्रॉ करो और सबसे पहले कहीं पे भी जहां पे आपको लगता है वहां पे एक पॉइंट मार्क करो और उसका नाम दे दो C। उसका नाम दे दो C। अब हमको ये पता है कि वो लाइन का लेंथ कितना दिया है, 65 mm, और वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू VP। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन। कितना mm लेना चाहिए, ये आपको लेना है 65 mm। 65 mm की लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर 65 mm की लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर टू VP। हो गया, इज इट ओवर? हो गया ड्रॉ? आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes sir. Okay, so have you drawn CD line? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. Yes, so sir. after drawing this line, now that point, C dash point, it is 20 mm above XY. So you can take a parallel line and the distance is 25 mm. 25 mm, take 25 mm distance above XY. Okay. And as we know that top view and front view lie on the straight line. So यहाँ से एक faint line draw करो जो यहाँ touch करेगा और यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ जिसका नाम रहेगा C डैश D डैश, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर एक जगह पे दूसरी जगह पे वो क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, C डैश D डैश। आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है? तो यहाँ पे 20 mm दिया है। अरे सॉरी 20 mm, सॉरी 20 mm, yes 20 mm, take 20 mm. Okay, so 65 mm, it is below XY and 20 mm above.
ठीक है, shall we take next? Yes, sir. Yes, it is simplest one. Such kind of examples will not come, but for making your concept, taken these simple and basic examples. Now that was inclined perpendicular to one plane. Now we will see inclined to one plane and parallel to other. Inclined to one, एक को inclined है, दूसरा parallel है. So उसके regarding एक example दिया है. Okay. Now example is, it is given in ND-BUT. If you refer ND-BUT, it is given there ND-BUT. Question is a line PQ. Line PQ जिसका length कितना है 90 mm long. Line PQ is 90 mm long. Is in HP. Is in HP. And makes an angle of 30 degree with VP. कौन सा एंगल होगा ये? And makes an angle of 30 degree with VP. अल्फा होगा, थीटा होगा, बीटा होगा कि फाई होगा, क्या होगा? फाई फाई होगा सर, फाई, क्योंकि ये किसकी बात कर यस रहे हैं? सर, ट्रू लेंथ की बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस, सो इट विल बी फाई. फाई कितना दिया है? 30 डिग्री. ये आप नोट डाउन कर लेना. Its end P is 25 mm in front of VP. VP मतलब P है ना? P point in front मतलब below XY line. below XY. So P, no, below XY, 25 mm below XY. Okay. आपको आपके सामने सॉल्यूशन दिख ही रहा है, इसलिए कोई ये नहीं है. Okay, now you have to draw the projection. Okay, so what you have to do you have to first of all draw a XY line. आपको पहले एक XY line draw करना है. XY line draw करना है. Okay, और कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ के यहां से हमको P पॉइंट ड्रॉ करना है, जिसका उन्होंने हमको क्या बोला है, जिसका डिस्टेंस हमको पता है वो है 25 mm. 25 mm पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो. ओके, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और इसका नाम दे दो P. इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर दो, उसका नाम दे दो P. ठीक है, और वो P पॉइंट आपको मिलने के बाद यहां से 30 डिग्री का एंगल लेना है. आई होप एवरीबडी इज हैविंग सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर. अगर सेट स्क्वायर नहीं होगा तो प्रोटेक्टर होगा, और सेट स्क्वायर होगा तो उसमें प्रोटेक्टर होता है जहां से आपको एंगल लेना होता है. ओके, एंगल लेना होता है आपके सबके पास? कैन यू एबल टू टेक 30 डिग्री एंगल? आपको पता है 30 डिग्री एंगल कैसे लेते हैं? ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने 8, 9, 10th में. हाँ सर, पता है. यस, वो प्रोटेक्टर जो है आपका ये इस तरह से रहेगा, करेक्ट? यहाँ पे रहता है 0, ये है ना. तो ये प्रोटेक्टर को यहाँ रखो, इस जगह पे रखो, और यहां से आपको 30 डिग्री की लाइन लेनी है. 30 डिग्री की एक लाइन लेनी है. 30 डिग्री मतलब यहाँ कहीं तो भी इधर से रहेंगी इस तरह से, यहाँ 30 लिखा रहेगा. ठीक है, ये प्रोटेक्टर को यहाँ रखो इस पॉइंट पे और 30 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करो, और उस लाइन का लेंथ कितना रहेगा? 90 mm. वो लाइन 90 mm की ड्रॉ करो, और जहां पे 90 mm खत्म होता है वहां पे नाम दे दो उसका Q. मेरे पास जगह नहीं यहाँ पे. Q. पहले हमने P पॉइंट लिया XY लाइन से नीचे 25 mm पे, कहीं पे भी एक जगह पे हमने P पॉइंट मार्क किया, वहां से हमने 30 डिग्री का एक एंगल लिया. 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद वो जो लाइन है वो 90 mm की ड्रॉ की, उतना डार्क कर दो 90 mm का, और जहां पे वो लाइन 90 mm की खत्म होती है वहां पे Q नाम दे दो. सो PQ का लेंथ कितना हो गया? 90 mm. तो दिस इज योर टॉप व्यू.
हो गया? किसी को कोई डाउट है एंगल लेने में? Sir, repeat this question. क्वेश्चन ही रिपीट करूं? कहाँ पे अड़ गए आप? कहाँ पे नहीं समझ रहे, मुझे बताओ। सर ये PQ ने क्या हम्म उसमें 90 फिर ये 30 वगैरह कैसे लेना वो नहीं समझ। 30 डिग्री का एंगल लेना है। आपके पास प्रोटेक्टर है क्या? प्रोटेक्टर पता है कि जहाँ पे ऐसा एंगल हाँ। है ना, तो जहाँ पे आपने पी पॉइंट मार्क किया होगा, पी पॉइंट कहाँ मार्क किया आपने? जहाँ पे भी पी पॉइंट मार्क किया होगा आपने, कहाँ? जहाँ देखो यहाँ पे पी पॉइंट मार्क किया हमने, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना है। ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल, ये जो है ना ओवल वाला शेप है ना, ये वाला, ये नीचे आना चाहिए, मतलब ये प्रोटेक्टर ऐसा आएगा और उसका जो पॉइंट है ना वो यहाँ कोइंसाइड होगा इस जगह पे, और यहाँ से आपको 30 डिग्री लेना है। अभी इतने दूर से तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, अगर मैं पास में रहता तो शायद मैं प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ करके देता था। प्रोटेक्टर को इस तरह से, जहां पे भी आप पी पॉइंट रख रहे हैं आप एक पॉइंट मार्क करो, वहां पे प्रोटेक्टर को रखो, है ना, उसका जो ओवल शेप है वो नीचे आना चाहिए, है ना, और वहां आपको 30 दिखेगा, 30 डिग्री के लाइन लो, और वो जो भी लाइन आप बनाओगे ना उसका लेंथ 90 mm होना चाहिए, उसका लेंथ 90 mm होना चाहिए। ओके, ये लेंथ 90 mm है, 90 mm इज द लेंथ ऑफ लाइन एंड 30 डिग्री इज द एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये लाइन आप एक ड्रॉ कर लेना बड़ी वाली, और फिर उसको 90 mm डार्क कर दो, जहां पे वो 90 mm खत्म होती है वहां पे नाम दे दो Q। तो ये लाइन हो गई PQ। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है, ऊपर में दिख रहा है आपको, ये देखो क्या किया हमने, यहाँ से है ना P पॉइंट मार्क की, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लिया, 30 डिग्री एंगल लिया, और ये जो लाइन है इसका लेंथ कितना है, देखो 90 mm को डार्क कर दी। हो सकता है ये लाइन आपने बड़ी निकाली हो, यहाँ से ऐसी बड़ी हो, बट जो पहला यहाँ से P से लेके Q तक कितना है, 90 डार्क करो, बाकी का रहने दो, मिटाओ मत, ठीक है, इतना ड्रॉ करो। इतना ड्रॉ करने के बाद ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये होगा आपका टॉप व्यू। अब हमको ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही प्रोजेक्शन पे रहते हैं, तो जहां पे आपका P पॉइंट है उसको यहाँ से प्रोजेक्ट करो XY लाइन पे, और जो आपका Q पॉइंट है उसको प्रोजेक्ट करो, वो लाइन फेंट एकदम प्रोजेक्ट करो XY लाइन पे, जहां पे वो टच करेगा, Q पॉइंट जहां टच करेगा उसका नाम रहेगा Q डैश, और P पॉइंट जहां टच करेगा उसका नाम रहेगा P डैश, और ये XY पे, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लाइन PQ 90 mm लॉन्ग इज इन HP। इन HP मतलब ऑन XY। इन HP का मतलब क्या होता है, ऑन XY। अबव बिलो बोला ही नहीं उसने, है ना, तो इसलिए हमको ये XY लाइन पे ही हमको ये P डैश Q डैश, तो इतना पोर्शन डार्क कर दो, जैसे यहाँ पे देखो डार्क किया है ये वाला P डैश Q डैश, ये देखो एक ही प्रोजेक्शन पे है। आई होप आपको समझा होगा अब इससे, ठीक है। बाकी जो सर टॉप, मेरी XY वाली लाइन वो 8 mm की आ रही। हाँ तो वो छोटी आएंगे ना बेटा, बराबर है ना, जो इंक्लाइन लाइन है ना वो 90 mm वो ओरिजिनल लेंथ है ना, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। वो पेंसिल है समझ लो, आपने उसको इंक्लाइन किया, जब आप उसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको वो हॉरिजॉन्टल दिख रही है, लेकिन छोटी दिख रही है, ठीक है। जो मिरर होता है ना उसमें अगर आप देखते हो उसको तो रिड्यूस लेंथ दिखेगा ना, तो वो छोटी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल लेंथ 90 mm था, जो इंक्लाइंड है तो वो उसका रिड्यूस दिखेगा उसमें, वो गिनना नहीं आपको। सर हाँ बोलो। वो लाइन 90 mm लेने के बाद वो Q और Q डैश लाइन ज्वाइन करना है क्या? हो P डैश Q डैश, वो फेंट ठीक है लाइन सर। ऊपर लेके जाओ XY लाइन पे, और वहां पे XY पे जहां पे वो टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतना लाइन डार्क कर दो, उसको ठीक गिनना है। नहीं है, लेंथ नहीं गिनना उसका, ठीक है। हाँ ठीक है सर।
इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो अब ये उल्टा हो गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लेंथ ऑफ टॉप व्यू, length of top view of a line parallel to VP. Length of top view of a line, length of top view उसने बोला है लाइन पैरेलल टू VP, मतलब टॉप व्यू कैसा है, VP में पैरेलल है, मतलब XY के नीचे वो पैरेलल दिखेगा, पैरेलल टू VP and inclined 45 degree to HP. Inclined 45 degree to HP. ओके, कौन सा एंगल हो गया ये? थीटा. हाँ ठीक है, थीटा वो होगा 45 डिग्री. ओके, और वो लाइन का लेंथ कितना है? 50 mm. कौन सी 50 mm? जो आपको टॉप व्यू दिख रही है वो 50 mm की लाइन है. ओके, one of the end of line is 12 mm above HP. वन ऑफ द एंड, कोई भी एक एंड जो है वो 25 कितना 12 mm अबव HP है. तो मान लो अगर लाइन का नाम है AB, तो एक एंड मतलब अबव HP बोला है ना, तो A डैश पॉइंट अगर मैं लेता हूं वो है A डैश पॉइंट 25 mm, 25 mm. कहां रहेगा 25 mm? अबव XY. 25 mm above XY. So 12 mm. Sorry, 12 mm, correct. 12 mm. Yes, one of the, हाँ 25 दूसरा है, हाँ. One of the end of line is 12 mm above HP, हाँ, and 25 mm in front of VP. तो दूसरा जो पॉइंट है मतलब A, वो कितना रहेगा? 25 mm. कितना रहेगा? 25 mm below XY. 25 mm below XY. ये आपको नोट डाउन करना है इसमें, ठीक है? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको XY लाइन ड्रॉ करनी है. सबसे पहले आपको XY लाइन ड्रॉ करना है. XY लाइन ड्रॉ करने के बाद XY लाइन ड्रॉ करना है, आपको पहला A डैश पॉइंट मार्क करना है और दूसरा A पॉइंट मार्क करना है. दोनों एक ही प्रोजेक्शन पे रहेंगे. पहले आपको XY लाइन से 12 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क करो जिसका नाम दे दो A डैश, और उसी प्रोजेक्शन पे नीचे 25 mm पे पॉइंट मार्क करो A. पहले इतना करो, XY लाइन ड्रॉ करो, XY लाइन के ऊपर 12 mm पे A डैश पॉइंट आना चाहिए और XY लाइन के नीचे 25 mm पे A पॉइंट आना चाहिए. इतना मार्क करो. हो गया इतना? Yes, sir. ओके, A डैश पॉइंट 12 mm ऊपर और A पॉइंट 25 mm नीचे. अभी जो आपका A डैश पॉइंट है वहां से आपको 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है. A डैश पॉइंट पे आपको सेट स्क्वायर या जो भी प्रोटेक्टर, आप सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर जो सेट स्क्वायर में है उसको A डैश पॉइंट पे रखो, उसका पॉइंट मिड पॉइंट, और वहां से 45 डिग्री का एक लाइन लो. ये जो दिख रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री यहाँ पे आपको पॉइंटर रखना है A डैश पे, और यहाँ से एक 45 डिग्री की एक लाइन ले लो, एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो. उसका लेंथ हमको पता नहीं है, 45 डिग्री वाली लाइन का हमको लेंथ पता नहीं है, तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दो बस. A डैश पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखो
ए डैश पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखो और 45 डिग्री की एक लाइन ले लो, 45 डिग्री की एक लाइन ले लो। ओके, उसका लेंथ हमको पता नहीं है, हाँ वो वैसे ही रखो। हाँ, लेंथ किसका पता है? 50 mm पैरेलल वाली लाइन का लेंथ पता है। तो जो ए पॉइंट है एक्स वाई लाइन के नीचे, जो आपने ए पॉइंट मार्क किया है, वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स वाई को पैरेलल ड्रॉ करो और इसका लेंथ हमको पता है। कितना है पता है इसका लेंथ? 50 mm। तो जो ए और बी पॉइंट है ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जिसका लेंथ रहेगा 50 mm। 50 mm का लाइन आपको एक्स वाई के नीचे बनाने का है, पैरेलल टू एक्स वाई, ए बी पॉइंट, ए बी पॉइंट। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर 50 mm की लाइन कैसे बनानी है? ए पॉइंट आपका आ गया 25 mm नीचे, ए पॉइंट, ए Yes, पॉइंट बना तो यहाँ से लो ना, पैरेलल लो ना। पैरेलल मतलब एक्स वाई लाइन को पैरेलल लो ना, ये ऐसे दिख रहा है आपको इसमें, पैरेलल समझते हैं आपको, इसको Okay. पैरेलल लो ना। और ये पैरेलल लाइन यानी ए से 50 गिनो, जहां पे खत्म होता है वहां बी नाम दे दो, है ना। ए से 50 mm गिनो पैरेलल और जहां पे खत्म होता है वहां बी नाम दे दो। अब आपके पास है ए डैश, आपके पास है ए और आपके पास है बी, लेकिन हमको बी डैश पॉइंट पता नहीं, बी डैश कहाँ मार्क करना है। तो हमको बी पॉइंट पता है, तो ये बी पॉइंट से एक प्रोजेक्शन लो स्ट्रेट, और वो कहीं तो भी जाके इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि हमको इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ पता नहीं है, बट हमको ये जो वर्टिकल प्लेन में ए बी लाइन की लेंथ पता है 50 mm। तो जहां पे आपका बी पॉइंट है वहां से एक वर्टिकल लाइन लो जो बी डैश, जो टच करेगी इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, जिसका नाम दे दो बी डैश। ओके, बी डैश। तो आपके पास ए डैश बी डैश भी बन जाएंगी और ए बी बन जाएंगी। तो ए डैश बी डैश ये ए बी से बड़ी रहेंगी, ठीक है। तो इतना बना दो। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी है, और एनडी भट्ट का एक सॉलिड एग्जांपल है ये। हो गया? हो गया सर। सबका? Yes, sir. यस। तो ये इतना इनफ है। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें जो यूनिवर्सिटी में एग्जांपल्स पूछे हैं या जैसे आते हैं वो वाले लेंगे, थोड़े टफ रहेंगे, और मैं उसका वीडियो ही बना दूंगा क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा ऐसे समझाने में। वीडियो रहेगा तो आपको समझ में आएगा। सो आई विल मेक वीडियोज ऑफ सच न्यूमेरिकल्स, ओके। और कुछ डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज जो A3 बैच के बच्चे हैं वो लोग they can post their roll numbers in the chat box and others can leave. आज का टॉपिक ऑफलाइन होता सर तो बहुत अच्छे से समझता था, और भी अच्छे से। हाँ ना, अभी क्या करें, अभी मजबूरी है क्योंकि ये टॉपिक हाँ, ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट। अभी आप समझ हाँ, सकते हो। लेकिन सर बोलो। आपने बहुत अच्छे से समझाया और स्टूडेंट को समझा भी, आई होप मुझे तो समझा। अच्छा। लेकिन ऑफलाइन होता तो एज एक्सपीरियंस से मैं मतलब पता था कि बहुत अच्छे से समझ में आता। अरे ऑफलाइन में मैं पता है क्या, हर एक बच्चे के हाँ, पास जा के, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी अपना यूनिट नंबर 3 शुरू हुआ है ना, तो अभी तक अपना यूनिट नंबर 2 ही पहला ही रहता, पहला या दूसरा ही रहता। मैं इतना एक न्यूमेरिकल को 1 आवर लगता है, तो मैं करीबन कंटिन्यू 2 घंटे का क्लास लेता, 2 आवर्स का क्लास, मतलब मान लो 10 बजे तो 12 बजे तक, या फिर एक्स्ट्रा क्लास भी लेता हूँ मैं 1 आवर का एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है हर एक के पास जा के। अभी ये ऑनलाइन में क्या हो रहा है, कुछ लोग नहीं बोलते, उनको नहीं समझाऊंगा, वो पूछा भी नहीं उन्होंने क्या है क्या नहीं, जान दो बोला। वहां पे कैसे करते हैं क्लास में, बच्चे पूछते, बुलाते, सर आप थोड़ा इधर आके बताओ ना हमको। तो मुझे पता है ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट